हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਮੈਥਡਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱल ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ that is cross multiplication method। तो ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 12 ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ a1 b1 ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 23 12 ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ one example। I am going to write one example। 2x plus 3y is equal to 8। 2x plus 3y is equal to 8 and second equation 4x plus 6y is equal to 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 23 12 23 12 ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 23 12 ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? 2 means second term ਦੇ coefficient, 3 means third term the coefficient, 1 means first term the coefficient, 2 means second term the coefficient। so let's see second term की है y, तो इथे आजू 3 इथे आजू 6, ठीक है जी। तो थर्ड टर्म केड़ी है 8 7, इथे आजू 8 इथे आजू 7, ठीक है जी। फर्स्ट की है 2 4, फिर सेकंड की है 3 and 6। दो तरह ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ 1 23 12। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ 23 12 ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਔਰ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? x ਓਵਰ y ਓਵਰ -1 ਹੋਗਾ, ठीक है। x ओवर y ओवर -1, क्योंकि वेरिएबल मेरे को की है x और y। ਹੁਣ मैं की करना है x ਦੇ नीचे ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 into 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ 6 into 8, ठीक है। 7 into 3 minus 6 into 8। next 8 into 4 minus 2 into 7, ठीक है। 8 into 4 minus 2 into 7, फिर की है थर्ड 2 into 6 minus 4 into 3, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। उस तो बाद देखो की आ जाएगा x ओवर की आ गया 21 minus 48, y कितना आ गया 32 minus 14 minus 1 ओवर कितना आ गया 12 minus 12, ठीक है। -12 minus 12। सो की आ गया साडे कोले, करो इन्हें सॉल्व। मेरे ख्याल में इस रूट के नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। कितना x ओवर 21 जो 48 जो 21 गए 7 2 -27 y over 18 and -1 over 0। तो a infinity है, -1 upon 0 is infinity, तो it means it has no solution। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ 0 ਆ ਜੇ, it means these equations have no solution।
इन्हां दा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इन्हां इक्वेशंस दा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो नैक्सट एक होर एग्जांपल लेने आपां इसे भी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होर वधिया तरीके नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। x plus 2y is equal to 5, 3x plus y is equal to 6, ठीक है जी। सो दीज इक्वेशंस है। सो 23 12 करो सॉल्व इनू 23 12, ठीक है जी। तो 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 2 1, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 1, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 6, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 3 और 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 and 1। सो x over y over -1 over, ठीक है जी। सो देखो 6 2 सा 12 -5, फिर 15 -6 और फिर 1 -6, ठीक है जी। इजी है। तो करो इनू x over 7, y over 9 -1 over -5, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और x की वैल्यू की है, x की वैल्यू फिर दोनों आप x over 7 is equal to 1/5 and y over 9 is equal to 1/5, ठीक है। x ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ y ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ x और y दोनों ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 1/5 ਦੇ, ठीक है। तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 7 over 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x उधर 7 हो जाएगा एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 over 5, ठीक है जी। ठीक है जी। एंड तुसी चेक भी जदों करना है तो यू कैन सबस्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर। अगर चेक भी करना आप चेक भी कर सकते हो। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ वैल्यू पुट करांगे 7/5 चेक। अगर तुसी चेक करना है कि मेरे आंसर सही है या नहीं, x की वैल्यू 7/5 प्लस 2 × 9/5 18/5, नीचे 5 आ गया, ऊपर 7 प्लस 18 25/5 आ गया, तो आंसर की आ जाएगा 5। राइट हैंड साइड से इक्वल आ गया, इट मींस आवर वैल्यूज आर राइट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर हो गया। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ मतलब ਹੋਰ ਵੀ दूसरे तरीके ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, चलो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए। ओके, एक क्वेश्चन है, लेट्स सी। ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਥਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ x और y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਫॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution। क्वेश्चन है कि p ਦੀ किस वैल्यू ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ यूनिक ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ a1 over a2 is not equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆ यूनिक ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, अगर a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, अगर तीनों इक्वल है तो की हुंदा सीगा मैनी
सॉल्यूशंस। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट वो की सीगा मैनी सॉल्यूशन और ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ कोइंसिडेंट लाइंस यूनिक सॉल्यूशन ਤੇ ਕੀ ਸੀ इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ if a1 is equal to a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2 तो ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ नो सॉल्यूशन। ठीक है ਜਾਂ ਫਿਰ पैरेलल लाइंस। सो ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ p ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ यूनिक सॉल्यूशन होएगा। सो ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ फर्स्ट कंडीशन। सो लेट्स सी क्योंकि उन्हें कहा कि केड़ियां वैल्यूज से दा यूनिक सॉल्यूशन होएगा तो ऑब्वियसली वी हैव दिस कंडीशन फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लेट्स सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀट्यूट ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2 इज नॉट इक्वल टू 8/2। तीसरा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक से हमने तो p की वैल्यू निकालनी है कि p की वो कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू पे ये सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कोई दो ले लो, आप ये ले लो 2/1 इज नॉट इक्वल टू p/2। चाहे आप इन दोनों को ले लो चाहे आप इन दोनों को ले लो, जो मर्जी कर लो, वो आपकी इच्छा। इन दोनों में से कोई दो हमने p की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस वैल्यू पे इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज पे p नॉट इक्वल टू 4 आ गया तो इट मींस वो सभी वैल्यूज पे ये इन इक्वेशंस का जो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ p4 को छोड़ के। ठीक है, 4 को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज होंगी उन पे ये इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह से और क्वेश्चन करो एक। आगे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, फॉर व्हाट values of k will be the following pair of linear equations have infinitely many solutions। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। तो ये हमारे पास kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक हमारे पास आ गई 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, आज के लिए इतने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि k की कौन सी वैल्यूज पे इन जो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो k अपॉन 12 3 अपॉन k माइनस 3 ओवर k, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, दोनों माइनस माइनस से ऊपर नीचे है तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो अब हमने पहले इनको ले लो फिर इनको ले लो, k की सभी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो पहले इनको करो k ओवर 12 इज इक्वल टू 3 ओवर k एंड 3 ओवर k इज इक्वल टू k/3 माइनस k। आप किसी को भी किसी एक को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से निकालो k स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, एंड यहाँ पे 3k की वैल्यू क्या आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है जी, तो यहाँ पे करो k की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6 क्योंकि 36 है
तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। एंड ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, के स्क्वायर -3k -3k, इधर इधर इसको ले आओ, ठीक है, इसको उधर ले गए, तो क्या आ गया, के स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कॉमन निकाल लो, के -6 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स के की वैल्यू 2 आ गई, 0 एंड 6। ठीक है, तो कौन कौन सी के की वैल्यूज आई हैं, 0, 6 एंड -6। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज है के की, जिन पे इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बेटा, ये थी आपकी सारी एक्सरसाइजेस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये 3.5 का था, तो इस पे आपने देखो वैसे कैसे हमने सॉल्व किया ये चीज करके। तो के अब एक चीज और मैं बता दूं, अब के की वैल्यू यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने पर के की वैल्यू क्या है, प्लस एंड -6, और इन दोनों को सॉल्व करने पर के की वैल्यू क्या है, 0 एंड 6, और दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 6। ठीक है, तो 6 के की वैल्यू जो 6 एग्जैक्टली है। ठीक है, के की वैल्यू 6 पे आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, के की वैल्यू 6 पे ये मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी, कल लास्ट इसकी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अलग तरह की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। सो तब तक के लिए थैंक्स।